سالار محترم نے 50 برس کی اپنی جدوجہد میں 10 برس صرف اور صرف مسلمانوں کے دلوں سے خوف کو نکالا، چاہے وہ چپل بازار کا فساد ہو تو ناٹن موٹر سائیکل میں پہنچنے والی شخصیت کا نام صلاح الدین اویسی تھا، تو رمیزابی کے فسادات میں پہنچنے والی شخصیت کا نام بھی سالار ملت تھا، تو جلتے ہوئے نظام آباد کے فسادات میں پہنچنے والی شخصیت کا بھی نام صلاح الدین اویسی تھا۔ سالار محترم مجھے ایک واقعہ سنائے تھے کہ سالار محترم یاقوت پورے کا الیکشن اس وقت کے وزیر داخلہ کے خلاف لڑا، کامیاب ہوئے تھے، اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے، یاقوت پورے سے سالار کا جلوس نکلا، لوگ پھول پہنانا چاہتے تھے، لیکن فخر ملت نے روکا، نہیں، سالار کو کہا کہ نہیں، اب یہ پھول نہیں پہنیں گے، ابھی نہیں، اور فخر ملت نے اس کامیابی کے جلسے میں آ کے مخاطب کر کے کہا کہ صلاح الدین اویسی یہ کامیابی کے پھول نہیں پہن سکتا، اس لیے نہیں پہن سکتا کیونکہ نظام آباد جل رہا ہے اور نظام آباد میں مسلمان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے صلاح الدین اویسی نظام آباد جائیں گے، وہاں کے پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور کریں گے، مایوس مسلمانوں کی مایوسی کو دور کریں گے، خوف کو دور کریں گے، اور مسلمانوں کو ان کا حق دلا کر جب نظام آباد میں سکون ہوگا، جب لوٹ کر آئیں گے تو صلاح الدین پھول پہنیں گے۔ ارے یہ قیادت، ایسی قیادت جو حیدرآباد میں نہیں بلکہ ریاست آندھرا پردیش میں کہیں پر بھی فساد ہوتا تو سب سے پہلے پہنچنے والی شخصیت کا نام سالار ملت تھا۔ تنہا موٹر سائیکل پر پولیس کی گولیاں برس رہی ہیں، پرواہ نہیں، لاٹھیاں آ رہی ہیں، پرواہ نہیں، جاتے ہیں تو صرف مسلمانوں کی ہمت بننے کے لیے، مسلمانوں کی طاقت بننے کے لیے۔ آج سالار محترم کے جو خدمات ہیں، دارالسلام جو مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز بنایا، تو دارالسلام کو صرف مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز نہیں بنایا، بلکہ دارالسلام کو مسلمانوں کے تعلیم کا مرکز بھی سالار ملت نے بنایا۔ اس وسیع میدان کے کونوں میں ایک طرف انجینئرنگ کالج کی بلڈنگ کی تعمیر کی، تو دوسرے طرف ITI کی انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ تعمیر کی، تو پھر کونے میں MBA و MCA کالج کی بلڈنگ کی تعمیر کی۔ ظفر گڑھ میں دکن میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی، اور جب بنیاد رکھی تو دنیا نے کہا کہ صلاح الدین اویسی تم کہاں پر میڈیکل کالج بناؤ گے؟ تو دنیا کے اس دور کے بڑے بڑے دانشوروں نے خے خے مار کر فقرے کسرے تھے، کیا انجینئرنگ کالج تم صلاح الدین اویسی اس املی کے جھاڑ کے نیچے قائم کرو گے؟ کیا میڈیکل کالج وہ ظفر گڑھ کی اس ٹوٹی پھوٹی عمارت کے اس پیپل کے درخت کے نیچے تم ڈاکٹر بناؤ گے؟ تو سالار ملت نے کبھی ان لوگوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھا، اور یہی کہتے رہے کہ اے اللہ، میں تیرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی خدمت کر رہا ہوں، اور ان کے لیے ہی کر رہا ہوں، بس اے اللہ تو اس مشن میں مجھ کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اور دنیا آج دیکھتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں،
ओवैसी हॉस्पिटल की बुलंद इमारत है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज की बुलंद इमारत है, दक्कन मेडिकल कॉलेज की बुलंद इमारत है, तो फार्मेसी की बुलंद इमारत है, एमबीए की इमारत है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की है, नर्सिंग कॉलेज की है। इतने तालीमी इदारे बना दिए। अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि जो तालीमी इनकलाब आज रियासत आंध्र प्रदेश में है, उसकी बुनियाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और सालारे मिल्लत ने रखी थी। किसी ने सालारे मोहतरम की तखलीक की तो किसी ने सालारे मोहतरम की मुखालिफत में काम किया, किसी ने सालारे मिल्लत की तखलीक में इदारे बनाए तो किसी ने सालारे मिल्लत की मुखालिफत में इदारे कायम किए। बहरहाल जितने भी इदारे बने सालारे मिल्लत के उस बुनियाद रखने के बाद ही बने। सालारे मोहतरम ने 84 में जब मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी तो क्या किसी मुसलमान खानदान का बच्चा उससे पहले इस बात का तसव्वुर भी कर सकता था कि हमारे खानदान से कोई डॉक्टर बनेगा? क्या कोई गरीब मुसलमान का खानदान, या मुसलमान गरीब नहीं बल्कि मुसलमान रईस खानदान का भी लड़का, क्या यह तसव्वुर कर सकता था कि वो डॉक्टर, वो इंजीनियर बनेगा? अरे सालारे मोहतरम ने 84 में जब ये तालीमी इदारों को कायम किए तो 37 बरस, 47 से लेकर 84 तक 37 बरस में सरजमीन दखन से सिर्फ 111 मुसलमान डॉक्टर्स निकले थे। सिर्फ 111। 84 से लेकर 2008 तक 2400 मुसलमान डॉक्टर्स निकल चुके हैं। जो काम 37 बरस में सिर्फ 111 तक हुआ, सालारे मोहतरम की मुदब्बिर क़यादत में, दूरंदेश क़यादत में हमने 24 बरस में 2400 मुस्लिम डॉक्टर्स को निकाल कर मिल्लत इस्लामिया की खिदमत के लिए मिल्लत इस्लामिया के हवाले कर दिया। ये इतना बड़ा कारनामा ओवैसी हॉस्पिटल व असरा हॉस्पिटल की बुनियाद क्यों रखी गई? सिर्फ मेडिकल कॉलेज के तकाज़ों की तकमील के लिए नहीं, बल्कि तड़पते हुए मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों की खिदमत के लिए इन दवाखानों की बुनियाद रखी गई। सालारे मोहतरम बार बार ये कहते थे, लोग ये बात कहते थे, मैं भी सालार से बार बार कहता था कि बाबा मेरी जिंदगी की अगर सबसे बड़ी अगर कोई नाकामी है वो ये है कि मैं आज तक भी ओवैसी हॉस्पिटल को गैर मामूली हॉस्पिटल नहीं बना सका। सालार कई मर्तबा सुने, कई मर्तबा, लेकिन अपने इंतकाल से चंद रोज पहले मैंने फिर कहा सालार से, तो सालार ने मुझे जवाब दिया, कहा नहीं, ओवैसी हॉस्पिटल सही है, नहीं चल रहा है, लोग ज्यादा नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी नाकामी नहीं है, न ही मुसलमानों की नाकामी है, न ही मजलिस की नाकामी है, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। इसलिए है क्योंकि ओवैसी हॉस्पिटल की बुनियाद उस वक्त रखी गई जब मैं दवाखाने उस्मानिया में फिसादात में तड़पते हुए मुसलमानों को दम तोड़ते हुए जब देखता था तो मेरा दिल तड़पता था। खून की अदम मौजूदगी पर मुसलमान का जब दम जाता था तो मेरा दिल तड़पता था। जख्मी गोलियों में तड़पने वाले मुसलमान उस्मानिया में तड़प कर दम तोड़ते थे, कोई डॉक्टर नहीं देखता तो मेरा दिल तड़पता था। अरे आज मेरा दिल नहीं तड़पता क्योंकि मक्का मस्जिद के बम धमाकों के बाद, पुलिस फायरिंग के बाद, जिस तरीके से असरा दवाखाने में, ओवैसी हॉस्पिटल में तड़पते हुए मुसलमानों की, जख्मी मुसलमानों का इलाज हुआ और कई मुसलमानों की जानों को बचाया गया, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह,
अब मुसलमान किसी सरकारी दवाखाने के डॉक्टरों के इलाज का मोहताज नहीं है। भैंसा में भी फिसाद हुआ, गोली लगी, अंतड़ियां बाहर थी, बाहर अंतड़ियां गिर रही थी, कपड़े में कस के बांध कर वो लड़का ओवैसी हॉस्पिटल को आता है। देखो कितना शिफा ओवैसी हॉस्पिटल में है कि अंतड़ियां बाहर थी, वेंटिलेटर पे लड़का था, गोली लगकर फाड़ कर निकल गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस मुसलमान को ओवैसी हॉस्पिटल में हयात दी। गुजरात में फिसादात हुए तो डॉक्टरों की टीम गुजरात को जाती है, 100 गोलियां निकालती है तो 450 सर्जरीज करती है, तो हजारों पेशेंट्स को देखती है। उसके बाद जो पेशेंट्स का इलाज गुजरात में नहीं हो सकता था, उनको हैदराबाद लाकर न सिर्फ इलाज करती है, बल्कि कई लोगों को मसनवी पैर लगाकर उनके पैरों पे खड़ा कर कर खुद को चलाकर हैदराबाद के रक्शे वाले, बंडी वाले, पंचर जोड़ने वाले मुसलमानों ने उस जख्मी अपाहिज मुसलमान गुजराती मुसलमान को पैर देकर चलता हुआ हैदराबाद से रवाना किया। इतना अजीम कारनामा, कारनामों की बड़ी फेहरिस्त है, लेकिन जिंदगी के हर शोबे में मजलिस ने काम किया। अभी साहब ने, अकबर निजामुद्दीन साहब कबिला ने कहा दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, वासवी बैंक, चारमीनार बैंक, प्रूडेंशियल बैंक, कितने बैंक्स डूबे नहीं, अल-फलाह, आसनजुबी, कितने फाइनेंशियल एजेंसीज नहीं डूबे। जो लोग कभी एतमाद के इश्तिहारात देते थे किसी बैंक के ताल्लुक से, आवाम के सरमाए को लगाने के लिए इसरार किया, मुसलमानों के मेहनत का, उनके खून और पसीने से कमाई गई उनकी मेहनत के पैसों का किन किन लोगों ने बेदर्दी के साथ न सिर्फ लूटा बल्कि गबन किया। हैदराबाद का मुसलमान परेशान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो दारुस्सलाम बैंक में पैसा रखाया था वो परेशान नहीं था। इसलिए परेशान नहीं था क्योंकि ये बैंक मुसलमानों के असासों की हिफाजत करने वाली उस जमात का बैंक था जिस जमात का सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था। अरे वो बैंक को आज A1 बैंक का स्टेटस मिला, कितनी बड़ी कामयाबी। रिजर्व बैंक ने दिया कि हिंदुस्तान के सबसे अच्छे A1 बैंक्स में अगर कोई है तो वह दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक है। सिर्फ यहां पे आपके सरमाए की हिफाजत नहीं हुई, बल्कि जिस दिन से दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक का क़याम अमल में लाया गया, उस दिन से लेकर आज की तारीख तक 11.5 करोड़ तालीमी खर्च सिर्फ दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक से दिया गया। 26 करोड़ रुपया छोटे कारोबार करने के लिए मुसलमानों को, बेरोजगार मुसलमानों को रोजगार पर लगाने दिया गया। तो हालिया अरसे में बेखसूर बम धमाकों में मुलविस बच्चे जिनके गिरफ्तारी पर वावेला मचाया गया, मजलिस पर तनखीदें की गई, मजलिस ने न सिर्फ उन बच्चों की जमानत की, मैं आज तक नहीं कहा, आज कह रहा हूं, बल्कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन बच्चों को रोजगार पे लगाने के लिए एक एक बच्चे को 50,000 रुपया अपने तरफ से देकर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी पैसा दिलाया और दूसरे बैंक से पैसा दिलाकर उन बच्चों को रोजगार पे लगाया, कारोबार पे लगाया।
इतना बड़ा काम न सिर्फ ये बल्कि मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद करते रहे। मगर मुझे आज वो बात बार बार याद आती है कि मैं 20 बरस से सालार के साथ हूं, बराबर जलसों में मुखातिब करते हुए सालार के साथ, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है सालार के खिताब में मैंने कभी यह नहीं सुना कि मैंने ये किया। सालार ने कभी यह नहीं कहा कि मैंने मेडिकल कॉलेज बनाया, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, मैंने बैंक किया, बल्कि सालार ने अपनी हर तकरीर में कहा कि जमात ने मेडिकल कॉलेज बनाया, जमात ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, जमात ने ओवैसी हॉस्पिटल बनाया, जमात ने ही किया और ये मुसलमानों ने किया। अगर यहां पर सब खड़े होकर सालार मोहतरम की तारीफ करते हैं तो सालार मोहतरम की तारीफ के साथ साथ